Yeah, hello, good evening, everyone. So, again, the routine question, how is going on? How is the practice going on, rather? Because now the CAT 20 is almost knocking on the door. Okay, so if you have any doubts, you can ask me frankly. Please don't hesitate. Myself, Abhijit Phansalkar, I have been in this particular teaching field, particularly for competitive exams teaching field, for last more 8 to 10 years. So basically I have done my engineering from COAP, one of the best colleges in India, from Savitribai Phule University in distinction. Then I completed my DBM from the same university in first class. I have conducted more than many thousands of hours of CAT training sessions, and I have trained more than many thousands of students for CAT. Many of my students have scored 99 plus percentile in exam and have secured admissions in B school. I really feel proud, or rather I feel really energetic when I get the calls from the students on result day. So here on Unacademy platform, what we are offering you, वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ. So here you will find एकदम simple procedure है. They have given step by step. सबसे पहले आपको Unacademy learning app you have to install on your mobile, and from there you have to go to Telegram. Telegram पे आपको हमारे साथ कनेक्ट करना है. The link is t.me/Unacademy just cat. ये एक ही शब्द है. This is the required link where you can connect with us. Okay. Then there you have to select the CAT module. Now particularly many students ask, why CAT? I would like to explain you in this way. CAT is on the top of the ladder, where if you prepare for CAT, automatically you are prepared for almost other 8 to 10 exams for more than 80 to 90%. ये सबसे important बात है. So if you have always backup plan ready, you will see that once you prepare for CAT, the exams like SNAP, CET, ZAT, NMAT, GMAT, JRE, banks, railways and so on, इसके लिए भी आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% हो जाता है. बैंक्स या स्नैप में थोड़ा सा जीके का थोड़ा ये टॉपिक अलग सा रहता है, बस बाकी कुछ नहीं. लेकिन almost 8 to 10 exams you can easily handle. Here in our Unacademy platform, we handle many exams like UPSC, MPSC, then IIT, JEE and many more exams. So particularly if you select CAT, वो बहुत ही फायदेमंद होता है. In addition, we provide 30 plus hours of live sessions every day. So वहाँ आप देख सकते हो, if you just connect anytime, you will find some educator definitely delivering his ideas. So आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. We provide structured courses in English and Hindi. We have support of more than 40 plus top educators in India, and we publish new courses every month. लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा ये करना है, वो है subscription. So you have to get the subscription to get all these facilities. Now you can easily compare our subscription fees with any other available platform in the market, and definitely you will find that our fee structure is quite attractive and economical. So for 12 months you have to pay only 17,500 rupees. Those who are planning for next year's CAT 2021 के लिए, and for 24 months you have to pay just 21,000 rupees. Okay, isn't it attractive or economical? Definitely you will appreciate. Not only that, if you use this referral code, that is my referral code ASP10, you will avail additional 10% discount on whichever module you select. So here still 1750 will be reduced. So net you have to pay only 15,750, and here again 2100 will be reduced. So net you have to pay only 18,900. Now isn't it attractive?
these figures have been displayed here inclusive of GST. GST is mandatory. अब इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ. इफ यू डिवाइड दिस बाय 365 you get hardly 43 rupees per day investment. And here if you divide this by 730, ये तो और भी इकोनॉमिकल और भी इंटरेस्टिंग रहेगा. इट इज जस्ट 25 रुपीज पर डे. और आप ही बताइए 25 रुपीज में आजकल क्या मिलता है. जनरली आई से दैट ओनली वन वड़ा पाव एंड वन कप ऑफ टी इज अवेलेबल इन 25 रुपीज. बट इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट विथ अस फॉर द नेक्स्ट 2 years, आपका करियर यहाँ बन जाएगा, आपका फ्यूचर यहाँ सेट हो जाएगा. बिकॉज नाउडेज MBA डिग्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Only one degree nowadays is not at all sufficient because the competition is so much, so vast, so cutthroat that with only one basic degree you cannot survive. But if you have additional MBA degree, whichever field you like, जैसे कि MBA in marketing, MBA in HR, finance, operations, systems, whichever you like. But if it is additional along with your basic degree, it will always increase your potential. It will always increase your weightage while going to attend for any interview with MNC. That will definitely add to your portfolio. क्या वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. प्लस यहाँ और एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. वी प्रोवाइड मेनी ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट, topic wise test, subject wise test plus full length test for tremendous practice. आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा. And that will help you to identify which is your stronger zone and which is your weaker zone. ये आइडेंटिफाई करने में ये मदद करेगा. Stronger zone that we have to just maintain with regular practice. Okay, जैसे कि many students say that we have confidence in quant. So quant आता है तो DILR तो अपने आप उसके साथ साथ बन जाता है. But sometimes they complain that they are slightly weak in verbal. So उसकी प्रैक्टिस कर लो, कोई टेंशन नहीं है. And vice versa, some students with convent background they say that they are good in English but they have small problem in quant. तो वो भी प्रैक्टिस से हो जाता है. एंड दिस वीकर जोन बाय प्रैक्टिस वी हैव टू इम्प्रूव एंड कन्वर्ट इट टू स्ट्रॉन्गर जोन. और ये हो जाता है. जस्ट हैव द एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर. ही यूज्ड टू डू अ नेट प्रैक्टिस ऑफ 2 hours डेली, इवन द टेस्ट मैच इज गोइंग ऑन. वो कभी ऐसा थका हुआ ये कभी नहीं करता. सो प्लीज रिमेंबर, जस्ट हैव हार्ड वर्क एंड डेली प्रैक्टिस, यू कैन विन. दूसरी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था. दैट इज अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यू कैन से दिस आई एम पर्टिकुलरली प्रेजेंटिंग scenario of last 3 years cutoff marks for DILR section of CAT. Now, as you are aware, in CAT you get 3 marks for every correct answer. But if your answer is wrong, then the 1 mark is deducted from your pocket. This is the dangerous thing. So in every competitive exam, we strictly guide the students that you attempt only those questions about which you are 100% confident. जाते जाते लास्ट 10 मिनट में कोई एक क्वेश्चन अगर रह गया है, जस्ट तुक्का मार दो उसे, ऑप्शन बी लगा दो, ऑप्शन सी लगा दो. नो, प्लीज ऐसा मत करना. अननेसेसरी अगर वो गलत गया तो ये आपके जेब से मार्क्स जाएंगे. अब यहाँ कॉलेज के एग्जाम से बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी आपको रखनी है. इन कॉलेज एग्जाम्स जनरली वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ वैसे नहीं है. यू कैन इजीली सी DILR टोटल 32 क्वेश्चंस हुआ करते हैं. ये हुआ करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस साल CAT 2020 में वहाँ डेफिनेटली कुछ बदलाव होने वाला है. बिकॉज ऑलरेडी दे हैव रिड्यूस द टाइमिंग. द टाइमिंग दे हैव ब्रॉट फ्रॉम 3 hours to 2 hours बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक. ईच सेक्शन from 60 minutes has been reduced down to 40 minutes. So
proportionately the number of questions will get reduced, but you have to keep the strategy the same. So यहाँ मैं हमेशा सजेस्ट करता था, यहाँ देखिए, if a student gets a score of 24, the percentile is 90. Nowadays in all B school admissions, percentile is considered, not the percentage. So it is the percentile you have to look after. So to get a score of 24, one needs to solve only 8 questions with maximum accuracy. वो सारे के सारे करेक्ट आने चाहिए, उसमें कोई ये नहीं रखना है. Next slot, the score of 35, the percentile shoots up to 95. For that you have to solve 12 questions. और ये बाकी तीनों साल के लिए भी मोर और लेस उतनी डेटा नज़दीक का ही है. And the next slot is important. For a score of 46, the percentile goes to 99, for which one has to solve just 16 questions. So ये strategy important है. This is the target generally I keep and tell students to achieve. 32 में से 16 questions means we have to just solve half number of questions. But only condition is with maximum accuracy. ये आपको मेंटेन करना ही होगा. और 32 में से 16 वो तो बन जाता है. उसके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस चेस करने की ज़रूरत नहीं है. डिफ़िकल्ट मीन्स वो आपको आएगा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, तो उससे बचना है. सो यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच यू कैन सॉल्व फटाफट. ओके, सो जस्ट अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी. सो प्रोपोर्शनेटली again number of questions this year will also get reduced. So वही आपको फॉलो करना है स्ट्रेटेजी, और डेफिनेटली यू कैन विन. अब इसके साथ, ये स्ट्रेटेजी के साथ वी विल प्रोसीड टू अवर अनदर टॉपिक, जो हम हर दिन कुछ ना कुछ शाम को डिस्कस करते हैं, वो देखना है. सो आज का जो टॉपिक है लॉजिक का ही, मीन्स ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. डायरेक्शन सेंस मीन्स ऐसे आसान क्वेश्चंस आपको कैट में नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्स में डेफिनेटली होंगे. जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ब्लड रिलेशनशिप, सीरीज एंड सीक्वेंस, मिसिंग टर्म, ऑड मैन आउट. कल जो हमने डिस्कस किया कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज एंड सीक्वेंस, डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, सिंबल्स एंड नोटेशंस, इनइक्वालिटी. ये ऐसे जो कुछ टॉपिक्स है वो हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट यू विल गेट द अवेयरनेस फॉर अदर एग्जाम्स. कैट में इस पे क्वेश्चंस अब पिछले 4 साल तो नहीं आए, पहले आया करते थे, लेकिन अब वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते इसमें. बट दीज यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स, वहाँ आते हैं. सो डायरेक्शन सेंस मीन्स बेसिक 4 डायरेक्शंस आर एज यू आर अवेयर. अपवर्ड दिशा जो हम दर्शाते, जो हमने ज्योग्राफी में बचपन से स्कूल में पढ़ा है, उसकी ऑपोजिट दिशा है साउथ. एंड व्हेन पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ऑन हिज राइट साइड इट इज ईस्ट. ईस्ट के ऑपोजिट west. So directions are universal, मीन्स उसमें कोई कभी बदलाव नहीं आता. Directions are fixed. So आपको बाकी अगर कुछ एडजस्ट करना है तो आप बाकी को एडजस्ट कर सकते हो. डायरेक्शंस को फिक्स रखना है. एंड दीज आर द सब डायरेक्शंस. नाउ द एंगल बिटवीन मेन डायरेक्शन इज 90 degrees. Okay, and similarly the angle between the sub directions is also 90 degrees. And angle between main direction and sub direction is 45 degrees. Now whenever it is given that a person starts from his house, starts from his office, starts from a certain place, moves to north. Moves to north means आपको उसको एक पोजीशन से शुरू करना है. moves to north. So ये दर्शाना है इस प्रकार, एरो भी दिखाना है. Then he turns right. Right का मतलब है by default it is in 90 degrees. He turns to his right. उसका फेस इस तरफ है, turns to his right. Right का मतलब वो इस दिशा में जाएगा. If it is given he turns left, तो वो इस दिशा में जाएगा, again in 90 degrees to his left. अब यहाँ आ गया, यहाँ लेफ्ट को वो टर्न किया, उसने लेफ्ट को टर्न किया मीन्स वो यहाँ जाएगा. इस दिशा में अगर लेफ्ट को टर्न किया तो वो यहाँ जाएगा. So these are the
की पॉइंट्स यू कैन से लेफ्ट राइट वो इस प्रकार मूव करेगा एंड जनरली इट इज इन 90 डिग्रीज. कई बार वो इस प्रकार देते हैं कि अपनी मैग्नेटिक नीडल होती है ना, मैग्नेटिक नीडल मीन्स वो कंपास जो नॉर्थ साउथ दर्शाता है. इसके कुछ उनके फेवरेट क्वेश्चंस आते हैं. वो इस प्रकार है कि एक मैग्नेटिक नीडल है, वो नीचे गिर गई जिसके कारण वो डैमेज हो गई, और डैमेज हो गई तो इनिशियली वो जो साउथ दिखा रही थी मीन्स वो नॉर्थ साउथ दिखाती है, तो नाउ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट. मीन्स उसका जो नीडल का जो पोर्शन है वो इस प्रकार डैमेज हुआ, या उसकी जो स्प्रिंग एक्शन थी वो इस प्रकार लॉक हो गई कि इनिशियली व्हेन इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ, नाउ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ये नॉर्मल डायरेक्शन इस प्रकार बनाना, और फिर ये साउथ जो है अंदर वो रॉन्ग दिशा बनाना. सो ये आएगा वेस्ट यहाँ. अब यहाँ वेस्ट मीन्स वेस्ट के ऑपोजिट आती है ईस्ट, तो यहाँ होगी ईस्ट. फिर इन दैट केस नॉर्थ जाएगा यहाँ और साउथ जाएगा यहाँ. सो बाहर नॉर्मल डायग्राम बनाना और अंदर डिफेक्टिव डायग्राम बनाना. जो उन्होंने कहा है कि साउथ इज नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो उसका जो एक्चुअल साउथ है वहाँ वेस्ट प्लॉट करना, और अकॉर्डिंगली बाकी जो रॉन्ग दिशा बन जाएंगी अकॉर्डिंगली तो वो प्लॉट करना. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नाउ इफ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स राइजिंग सन, इफ अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स rising sun, then according to that compass to which direction he will be facing. So rising sun means वो ईस्ट की तरफ एक्चुअली देख रहा है, लेकिन उस डिफेक्टिव कंपास में वो साउथ दर्शाएगा. सो इस प्रकार ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रकार के होते हैं. ओके, या तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो उसमें वैसे ही होगा. पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, फिर वो नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर राइट की तरफ मुड़ता है, फिर राइट की तरफ मुड़ता है, फिर लेफ्ट की तरफ, और सर्टन न्यूमेरिकल डिस्टेंसेस आर गिवन. एंड देन द क्वेश्चन इज आस्क्ड ईदर नाउ लास्ट wherever is he standing with reference to his original position, now in which direction he is going and how far away he is from the starting point. इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ होते हैं. दूसरे कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार है कि now in the morning sun is in the east. ओके, कुछ लोग इस प्रकार जा रहे हैं, मीन्स ये इस प्रकार नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये साउथ की तरफ, ए और बी, या तो यहाँ ये ए और बी इस तरफ जा रहे हैं, ए ईस्ट की तरफ जाए, बी वेस्ट की तरफ जा रहा है. नाउ वॉच फॉर टू क्रिटिकल वर्ड्स. एक, शैडो इज फॉलोइंग टू हिज राइट और लेफ्ट, एंड शैडो इज फॉलोइंग बैक और अहेड. इनमें से कौन से शब्द है ये आपको वहां केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि ये अगर नजर से छूट गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो आंसर गलत जाएगा. नाउ शैडो इज फॉलोइंग टू हिज राइट, इसका मतलब द पर्सन्स आर मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज दे आर गोइंग नॉर्थ एंड साउथ, इस प्रकार जा रहे हैं. मीन्स ये कंडीशन ये वाली. एंड शैडो इज फॉलोइंग अहेड ऑफ हिम, या तो शैडो इज फॉलोइंग टू हिज बैक. अब जनरली क्या होता है, सूरज जिस दिशा में होता है उसके ऑपोजिट हमेशा शैडो जाती है. सो इन दैट केस अब यहाँ इसकी शैडो यहाँ जाएगी और इसकी शैडो यहाँ जाएगी और इसकी शैडो हमेशा यहाँ जाएगी, इसकी शैडो आगे जाएगी और इसकी शैडो पीछे जाएगी. सो वॉच फॉर द वर्ड्स राइट और लेफ्ट, या तो बैक एंड अहेड.
सो बी की शेडो उसके राइट में है, तो वहां से पता चलता है उसके राइट में मीन्स बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ए की शेडो उसके लेफ्ट में है तो ए इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ. सिमिलरली इन द इवनिंग, सो ये हुआ मॉर्निंग का नज़ारा. इन द मॉर्निंग सन इज इन द ईस्ट, शेडो अपोजिट जाएगी. इवनिंग में क्या होगा? अगेन कंसेप्ट इज सेम, शेडो इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट डायरेक्शन. सो बी की शेडो उसके लेफ्ट में जाएगी, ए की शेडो उसके राइट में जाएगी. तो कई बार वो इस प्रकार देते हैं कि ए की शेडो बी के लेफ्ट में जा रही है, ये ऐसे देते हैं, ये भी ध्यान में रखना. यहाँ देखिए, यहाँ ए की शेडो ए के राइट में है, लेकिन बी से कंपैरिजन में बी के वो लेफ्ट में है ड्यूरिंग इवनिंग. मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में बी की शेडो बी के राइट में है, लेकिन वो ए के लेफ्ट में है. सो ये शब्द केयरफुली मार्क करना. सो इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ आपको बाकी सारे एग्जाम्स के लिए मिल सकते हैं. अब एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस है वो देखते हैं. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये ज़रूर अटेम्प्ट करना, ये आपको डेफिनेटली मार्क्स दिलवा सकते हैं. सो वॉच फॉर द वर्ड राइट लेफ्ट, या तो बैक और अहेड. सो वर्टिकल पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये वहां से पता चलती है. मीन्स वो लोग किस प्रकार बैठे हैं. कई बार देते हैं दो लोग मीन्स बैक टू बैक बैठे हैं, सो बैक टू बैक बैठे हैं और उनकी किसी की शेडो उसके राइट में जा रही है, उसके लेफ्ट में जा रही है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजिशन, वेदर इट इज वर्टिकल. वर्टिकल मीन्स नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट. हॉरिजॉन्टली इस प्रकार उसका पता चलता है. ओके, अब यहाँ कुछ उसके क्वेश्चंस है डायरेक्शन बेस्ड, वो देखते हैं. Okay, now one day a person started from his house, traveled 30 kilometers west. Okay, west means वो यहाँ गया. Okay, 30 kilometers. So आपको वो एरो भी दिखाना है और वो डिस्टेंस का जो न्यूमेरिकल फिगर है वो भी दिखाना है. Then he took a left turn. Left turn means वो यहाँ जाएगा. And traveled 21 kilometers. So 21 kilometers. From there he took a right turn. Right turn means वो यहाँ जाएगा. And again traveled 30 kilometers. So ये फिर से 30. From there he turned to his left and traveled 6 kilometers to reach his office. Again left 6 kilometers. So what are the vertical and horizontal distances between his home and office respectively? सो ये जो ऐसे यहाँ पॉइंट्स मिलते हैं ना, जिसे हम कहते हैं हैंगिंग पॉइंट्स. ये देखो, यहाँ ये एक हैंगिंग पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट. ये एक, ये. सो इन सब को आप इस प्रकार कनेक्ट करो, जितने भी हैंगिंग पॉइंट्स हैं सारे कनेक्ट कर लो, सो दैट यू विल गेट डिफरेंट स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे मिलेंगे. ज़्यादातर रेक्टेंगल या स्क्वायर, क्योंकि वो परफेक्ट 90 डिग्रीज में आपको उसे कनेक्ट करना है. सो ऑलवेज जॉइन द हैंगिंग पॉइंट्स. ओके, आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ, जॉइन हैंगिंग पॉइंट्स. मीन्स अब यहाँ क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 30, ये डिस्टेंस हो गया 30, ये डिस्टेंस है 21 और ये डिस्टेंस है 6. अब उन्होंने पूछा है कि उसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस ये है कि फाइंड आउट हिज वर्टिकल एंड
horizontal distance respectively from his initial position. Initial position से now vertical distance, this is 27 and horizontal distance is 60. So wherever hanging points are there, you join them in such a way that you get different squares or rectangles. Means वहाँ perfect 90 डिग्री का मामला होना चाहिए. इस प्रकार आप उसे ज्वाइन करो so that जो भी आपको वर्कआउट करना है वो आसान हो जाएगा. Now sometimes it is asked, उनका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि how far he is away from his starting point. तो इन दैट केस अगर आप ये सारे हैंगिंग पॉइंट्स इस प्रकार भी कनेक्ट करोगे ना, तो जनरली ये जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट आता है, इट इज जनरली अ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ये उसमें आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा. Okay, so whenever it is asked that what is the final distance between the starting point and the final point, so generally if you join those 2 points and also join the hanging points in between, वो जो हमेशा distance पूछा जाएगा, that is generally a hypotenuse of right angle triangle, and you have to apply the Pythagoras rule over there. Pythagoras rule क्या कहता है कि sum of squares of two sides which make 90 degrees between them is equal to the square of hypotenuse. अब इसके कुछ बेसिक जो ट्रिपलेट्स है वो इस प्रकार है. सबसे बेसिक जो ट्रिपलेट है वो इस प्रकार है. इट इज 3 4 5 means 3 square plus 4 square is equal to 5 square. 3 and 4 are the dimensions of the two sides which form 90 degrees between them. अब इसके कुछ मल्टीपल्स अगर हम लेते हैं बेसिक, तो वहाँ भी वही कंसेप्ट आपको मिलेगा. 6 8 10, 3 टाइम्स में होगा 9 12 एंड 15, 4 टाइम्स में होगा 12 16 20, 5 टाइम्स में होगा 15 20 एंड 25. ओके, ये बेसिक है. दिस यू विल लर्न इन डिटेल्स इन योर ज्योमेट्री ऑल्सो. लेकिन समटाइम्स these calculations are essential in logical reasoning का जो टॉपिक है direction sense, वहाँ आपको यूज करना होगा. Similarly, some other user friendly triplets are 5 12 13, then 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61. सो ये यहाँ डायमेंशन से पता चलेगा आपको. 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज 61 स्क्वायर. ओके, सिमिलरली सम 12 35 एंड 37. सो दीज आर सम यूजर फ्रेंडली. जस्ट आपको ध्यान में रखना है. ओके, अब इसके जो आगे की कुछ एग्जांपल्स है वो इसी पे है, वो देखते हैं. सो ये कंपेरेटिवली आसान था. जस्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा था. अगर एक्चुअल वो डिस्टेंस कितना है तो 60 स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, ये जो भी आएगा उसका रूट. दैट कुड हैव बीन द आंसर. ओके, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट triplets you can say. So इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी आपको फाइनल ये डेस्टिनेशन जिस प्रकार वो घुमाएंगे, तो एट द एंड यू हैव टू ऑलवेज जॉइन द हैंगिंग पॉइंट्स. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सो दैट वो फाइनल जो डिस्टेंस या जो भी है वो आपको मिल जाएगा. Okay, now next is
While jogging, a person jogs 5 kilometers towards north. Okay, 5 kilometers north from the starting point. Then he turns right and jogs 3 kilometers. Right, 3 kilometers. Again he turns left, jogs 5 kilometers. Left means यहाँ जाएगा, so ये 5 kilometers. From there he turns right. ये right यहाँ आएगा. Jogs 2 kilometers. And finally 2 kilometers to his left. Again left में 2 kilometer. So वो किस प्रकार जा रहा है वो देख लो. स्टार्टिंग पॉइंट से पहले नॉर्थ 5 किलोमीटर, देन राइट 3 किलोमीटर, अगेन लेफ्ट मीन्स उसके फेस के हिसाब से वो राइट और लेफ्ट आपको मार्क करना है. लेफ्ट 5, अगेन राइट 2, अगेन लेफ्ट 2. हाँ, अब यहाँ देखिए ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कनेक्ट ऑल द हैंगिंग पॉइंट्स. सो ये 5 मीन्स ये 5 यहाँ हो जाएगा, ये 5 यहाँ हो जाएगा, ये 2 और ये 3. और इसे अगर आप ये कनेक्ट करते हो, दिस इज द डिस्टेंस वी वांट टू मेजर. तो ये क्या बना देखिए, ये फाइनल इस प्रकार अगर आप कनेक्ट करते हो तो फाइनली आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा. सो ये डिस्टेंस है 5, ये है 12. अभी हमने देखा कि जो यूजर फ्रेंडली ट्रिपलेट्स है तो 5 12 मीन्स इट इज गोइंग टू बी 30. सो इस टाइप के केसेस में हमेशा the final जो भी distance count करना है, that generally you will get a hypotenuse of a right angle triangle. Okay, similarly, a person starts from his office, walks 2 meters to the east, 2 meters east, then walks 8 kilometers right, 8 kilometers right. Right means वो यहाँ जाएगा, okay, उसके फेस के कंपैरिजन में right. Then 2 kilometers towards east. East means वो यहीं जाएगा फिर से. ईस्ट की वो दिशा फिक्स होती है, साउथ वेस्ट, वो जिस दिशा में है वो दिशा की जो एंगल है वो तो लेना ही पड़ेगा. सिर्फ राइट और लेफ्ट ये केयरफुली देखना है. देन अगेन 4 किलोमीटर साउथ, 4 किलोमीटर साउथ, एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट 1 किलोमीटर. And again they have asked what is the final distance. So again we want this distance. So इसे कनेक्ट करो, सारे हैंगिंग पॉइंट्स जोड़ लो. So again you will be getting the right angle triangle. और ये 2 और ये 1 में से ये हुआ 5 किलोमीटर, और ये 8 और ये 4. अब फिर से देखिए again it is the standard configuration 5 12 13. that's why I said ये ऐसी जो यूजर फ्रेंडली फिगर्स हैं हमेशा ध्यान में रखना. so ये 30 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर्स, 15 तक क्यूब्स, ये अगर आप अच्छी तरह से याद रखते हो तो ये ऐसे कैलकुलेशंस फटाफट हो सकते हैं. सो ये लेफ्ट राइट कितना भी घुमाए, आपको सिर्फ वो फॉलो करना है डायरेक्शन केयरफुली.
Now they have given point N is towards the north of point N. Point N is towards the north of point N, 10 meters away. So ये distance 10 meters की दूरी पे है. Then point P is 6 meters to the west of point N. West means ये दिशा होगी. Point P is 6 meters to the west of N. And 8 meters to the east of point Q. Okay, so ये है Q. So ये distance है 8. Okay, see, point M is towards north of point N, is 10 meters away from point N. P is 6 meters to the west of point N and 8 meters to the east of point Q. So what is the shortest distance between the points M and Q? So इसे कनेक्ट करना है. कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल विथ डायमेंशंस 14 एंड 10. अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आएगा. सो इट इज 14 स्क्वायर is going to be 196, 10 square is going to be 100, so 296 उसका स्क्वायर रूट जो भी बनेगा, बिकॉज ऑप्शंस में उन्होंने आंसर रूट 296 ऐसे ही दिया है. अब इसके एक्चुअल रियल बड़े क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं वो थोड़ा देखते हैं. मिस्टर एक्स इज पॉइंटिंग 7 पॉइंट्स A to G ऑन अ मैप. A is 10 meters to the south of B. ओके, B के साउथ में A at a distance of 10 meters. B is 5 meters to the east of C. B is 5 meters to the east of C. C is 15 meters to the west of D. 15 में से ये 5 हो गए, मीन्स यहाँ और 10, ये होगा D. C is 15 meters to the west of D. D is 10 meters to the north of E. 10 meters to the north of E. So ये distance भी होगा 10. E is 5 meters to the east of F. Much. And F is 10 meters to the north of G. या ऐसे एक्सरसाइज आपको मिलेंगे. सो डायरेक्शंस के अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं बहुत आसान होते हैं, ज़रूर अटेम्प्ट करना, आराम से निकलते हैं, आराम से. सो उसका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, इन विच डायरेक्शन इज बी विथ रिस्पेक्ट टू जी. सो बी जो है, बी यहाँ है, जी यहाँ है. सो ये दिशा कौन सी हो गई? B विथ रिस्पेक्ट टू G. सो सीक्वेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ये दिशा हो गई नॉर्थ वेस्ट. अगर उन्होंने पूछा होता कि G विथ रिस्पेक्ट टू B कौन सी दिशा में है, तो इन दैट केस इट वुड हैव बीन साउथ ईस्ट. So that reference point is always important. किसकी दिशा किसके रेफरेंस में पूछा है. सो B विथ रिस्पेक्ट टू G, इसलिए G के रेफरेंस में B जाएगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस में साउथ ईस्ट भी उन्होंने दिया है.
purposely to confuse you, so be careful. और कोई क्वेश्चन है क्या उस पर? हाँ है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन कंबाइंड फॉर्म अ स्क्वायर? सो ये स्क्वायर कहाँ फॉर्म होता है अगर ये ज्वाइन किया जाए तो? सो इट विल बी ए बी डी ई विल फॉर्म स्क्वायर. ओके, ये क्वेश्चन है. एंड how far is F from A and in which direction? So F जो है ये पॉइंट, वो A से कितना दूर और कौन सी दिशा में है? So it is 5 meters to the east. सो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कितना भी घुमा फिरा के देंगे, डजंट मैटर. अगेन ऐसा ही एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं. देर आर 7 हाउसेस P to V इन अ स्ट्रीट. अब उनके डिस्टेंसेस किस प्रकार उन्होंने दिए वो देखते हैं. पहला है P इज 6 meters टू द वेस्ट ऑफ Q. P 6 meters to the west of Q. Q is 3 meters to the south of R. Q is 3 meters to the south of R. Okay. Then S is 8 meters to the west of R. 8 meter means वो थोड़ा सा आपको रेफरेंस लेना है, मीन्स वो डिस्टेंस वाइज थोड़ा उसके बाहर जाना चाहिए. S क्योंकि ये 6 है तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा. सो इससे अगर आप कनेक्ट करते हो तो ये 6 और 2 इस प्रकार बनेगा. 6 और 2. Then S is 6 meters to the north of T. 6 meters. इसका मतलब ये यहाँ जाएगा T. Again, if you connect this, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3. 6 meters to the north of T. नॉर्थ वेस्ट ये हिस्सा दिया तो वो उसी स्ट्रेट लाइन में आता है. ओके, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल जो भी होगा. देन U is 4 meter to the west of T. 4 meter west मीन्स यहाँ आएगा, ये होगा U 4 meter to the west. एंड 3 meter to the south of V. सो ये यहाँ होगा V 3 meters. तो ये इस प्रकार ये मैप बन जाएगा. 7 जो है P Q R S T U V. ओके, सो ये इस प्रकार यहाँ मैप बन गया. अब इस पे क्वेश्चंस देखिए. इफ अ हाउस W लाइज बिटवीन S एंड T, S एंड T के बीच में W है, and forms a rectangle with SRQ. इसका मतलब ये W यहाँ होगा एग्जैक्ट यहाँ हाफ वे, सो दैट ये SRQ के साथ वो रेक्टेंगल बनेगा. देन हाउ फार इज W फ्रॉम U? सो ये जो W है U से कितनी दूरी पे है. अगेन ये 3 ये 4
सो ये आएगा 5 सीधा. It will be again forming a hypotenuse. And in which direction is t with respect to q? So t यहाँ है, q यहाँ है. Direction इस ऐसी चाहिए, इस दिशा में. t की दिशा q के रेफरेंस में. It is not q with respect to t, but it is t with respect to q. सो ये दिशा कौन सी हो गई? इट इज साउथ वेस्ट. सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स मैं बार बार कहता हूँ, अगर आ जाते हैं तो आप जरूर करना. ओके. इजी होते हैं मार्क करने के लिए. इसके कई बार बड़े एक्सरसाइज देते हैं, बहुत थोड़ा सा बड़ा मैप देते हैं, लेकिन इस पे जैसे स्नैप और सीईटी में जैसे वहाँ एट ए स्टेज आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चंस मिल सकते हैं एट ए स्टेज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑलवेज अटेम्प्ट सच एक्सरसाइज वेयर एट ए स्टेज यू गेट 2 और मोर क्वेश्चंस. हमेशा उसे अटेम्प्ट करना चाहिए. Now, a person traveled 10 kilometers south. 10 kilometers south. Then took a left turn and traveled 12 kilometers. So left means यहाँ जाएगा 12 kilometers. Then again took a left turn, traveled 6 kilometers. Then again he turned left and traveled 15 kilometers. Okay, अब यहाँ देखिए 15 में से ये इसे क्रॉस करके जाएगा. So ये 12 और ये 3. Similarly यहाँ क्या होगा? ये 6 और ये 4. इस प्रकार होगा. Now, how far and in which direction is his school from starting point? Starting point ये है, ये पूछा है. सो अगेन यहाँ देखिए ये 3, 4 में से आ गया 5 एंड डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट. ये एक इंटरेस्टिंग है. 2 persons A and B started from the same point. एक पॉइंट से 2 लोग निकले एट ए टाइम. वॉक्ड 5 meters towards साउथ. दोनों साउथ की तरफ गए 5 meters. After that A walked 6 meters to his left. 6 meters left. So ये है A. Then 5 meters to his right. 5 meters to his right. And stopped. Okay. B walked 4 meters towards his right. B यहाँ गया 4 meters. B. And 5 meters left. यहाँ घुमा 5 meters. Now what is the distance between A and B? Means ये find the distance. ये तो एकदम straight forward question निकला. So it is just 10 meters.
अब ये देखो, ये क्लॉक का भी क्वेश्चन है और डायरेक्शन का भी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्शंस आर फिक्स्ड, ये ध्यान में रखना। If a clock is placed in such a way that at 3 p.m. the hour hand points towards west, 3 बजे ये इस प्रकार, ओके, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, लेकिन उन्होंने कहा है एट 3 p.m. the hour hand points towards west, तो ये है वेस्ट। अब ये वेस्ट मीन्स ये हो गई ईस्ट, तो ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ। ओके, हमने घड़ी को घुमाया। Then in which direction is the minute hand of the clock at 4:45? 4:45 को कहाँ होगी पोजीशन? 4:45 will be like this. Okay, ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड, वो मिनट हैंड 4:45, करेक्ट, मीन्स ऐसी पोजीशन होगी। करेक्ट, क्लॉक इज प्लेस सच दैट एट 3 o'clock, 3 p.m. या AM कुछ भी, 3 o'clock आवर हैंड, सॉरी, आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट, आवर हैंड, ओके ओके, ये थोड़ा गलत हुआ, आवर हैंड है, सो दिस इज वेस्ट, ये वेस्ट मीन्स ये ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। आई एम सॉरी, आवर हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो 4:45 पे मिनट हैंड किस दिशा में जाएगा? सो इट विल गो टुवर्ड्स ईस्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब इस पे कुछ कंपास के प्रॉब्लम्स है क्या देखता हूँ। इस कंपास नीचे गिरा, टूट गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, यहाँ है ऐसे कुछ क्वेश्चंस। A compass was damaged and its needle turned in such a manner that the pointer which normally shows west is showing north. अब देखिए, बाहर ये नॉर्मल बनाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब वहाँ क्या हो गया? द पॉइंटर विच नॉर्मली शोज वेस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ, सो वेस्ट यहाँ जाएगा, वेस्ट मीन्स ईस्ट यहाँ आएगा, तो नॉर्थ यहाँ होगा, साउथ यहाँ होगा। इस प्रकार वो डैमेज कंपास बन जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, a person who was following the damaged compass went towards the geographical south. So actually in which direction he went? Which normally shows west is now showing north. So north की तरफ जाएगा west. Normally जो north होता है तो वहाँ वेस्ट होगा, वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो द पर्सन इज गोइंग टू साउथ, मीन्स एक्चुअली वो साउथ जा रहा है, लेकिन डैमेज कंपास के हिसाब से वो कहाँ जा रहा है? ईस्ट की दिशा में जा रहा है, करेक्ट। सिमिलरली और एक ऐसे डैमेज कंपास है, हमेशा बाहर उसका नॉर्मल ये बनाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट।
A compass is damaged such that its needle which was showing south is now showing east. So south उसकी यहाँ गई, means north will be here. North के right में east और यहाँ west. So according to the damaged compass, a person is going in southwest direction. कंपास के हिसाब से वो एक्चुअली जा रहा है साउथ वेस्ट की दिशा में. तो नॉर्मल वो किस दिशा में जा रहा है? तो इट विल बी साउथ ईस्ट. सिमिलरली ये जैसा है वैसे ही वो शैडो का भी एक प्रॉब्लम है. वन मॉर्निंग में सन इज इन द ईस्ट. A and B started walking in opposite directions. When they met, A observed that B's shadow was falling to the right of B. Right means वो ऐसे जा रहे हैं. शैडो यहाँ आएगी इसकी और इसकी शैडो यहाँ आएगी. A observed that B's shadow was falling to the right of B. इसका मतलब ये B है और ये A है. B की शैडो उसके राइट में है. So in which direction is A walking? A is walking towards north. Similarly, one evening means ये यहाँ होगा. A and S are walking in the opposite direction towards each other. When they are exactly next to each other, A observed that his shadow is falling to the right of S. Again, right and left means ये ऐसी दिशा में जा रहा है. इसकी शैडो आएगी यहाँ, इसकी शैडो आएगी यहाँ. अब A कौन है और S कौन है? तो A की जो शैडो है वो S के राइट में है. तो यहाँ होगा A और यहाँ होगा S. So in which direction is S moving? S is again moving towards north. सो इस टाइप के डिरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस ज़्यादातर ये स्नैप सीईटी जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं. सीईटी में तो बहुत आते हैं. सीईटी में टोटल 75 क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक पे 5-5 क्वेश्चंस तो आराम से होते हैं. लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. तो वहाँ आप बिंदास तुक्का लगा सकते हैं. अब एक इम्पोर्टेंट अपील आपसे करना है. Nowadays, Unacademy has started a NST, that is National Scholarship Test. It is held on every Sunday at 5 o'clock, 5 to 6. उसके लिए आपको क्या करना होगा? जस्ट गेट दिस लिंक unacademy.com event test series /NST. ज़रूर ये देने की कोशिश करना, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि आप कितने पानी में खड़े हो, क्या क्या आपको आता है, विच इज़ योर वीकर जोन, विच इज़ योर स्ट्रॉन्गर जोन. और ये इनकरेज करने के लिए फॉर फर्स्ट टॉप 10 रैंकर्स को अमेजॉन वाउचर्स वर्थ ₹5,000 ईच. 11 to 30 वालों को वर्थ ₹3,000 ईच. एंड 31 to 50 रैंकर्स के लिए 2,000 ईच. इस प्रकार अवार्ड्स दिए जाते हैं. सो इनकरेजमेंट के लिए वो तो है, लेकिन आप उतने प्रैक्टिस में रहोगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा. ओके, सो वी कंक्लूड ओवर हियर.